Good morning, students. Today we will discuss part 2 of the lesson, The Fall of Troy. At the last, Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odyssey who thought of plan to obtain the victory. इस पैराग्राफ में राइटर ये बता रहा है जो ट्रॉय है वो जबरदस्ती उन लोग से लिया गया। उन लोग ने एक प्लान बनाया, उसमें चतुर जो ओडिसी था उनका लीडर 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 ग्रीक का, उसने एक प्लान बनाया था ट्रॉय वालों से जीतने के लिए। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, big enough to hold men inside it, and let some of our best fighter hide in the horse. वो बोलता है इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे कि उसके और उसके अंदर अपने जो बड़े बड़े सोल्जर्स है उसके अंदर छुप जाए। देन देन एक मिनट रुको। Then let us burn our tents and pretend to sail away in ship. But instead of sailing away, we will return in the night. वो बोलता है उसके बाद अपन लोग अपने जो टेंट है उसको जला देंगे और ऐसा दिखाएंगे, प्रिटेंड मतलब ढोंग करेंगे कि अपन लोग वहां से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रात को अपन वापस आ जाएंगे। When the Trojans are asleep, we will attack the city and burn and kill. जब ट्रोजन वाले सो रहे होंगे, जब अपन लोग हमला करेंगे और उसको जला देंगे और मार डालेंगे सबको। The Greek leader decided to follow the advice of the wild Odyssey. So a great horse of wood was made by skillful engineer and greatest heroes Melanius Odysseus himself and other entered it. The last man to go the in being the architect himself who know the secret of opening and shutting the entrance. जो ग्रीक वाले थे उनने ओडिसी की सलाह मानी और एक बड़ा सा घोड़ा बनाया जिसके अंदर मेलिनियस ओडिशियस और बड़े बड़े उनके जो योद्धा थे वो उसके अंदर गए। और आखिरी में सबसे आखिरी में जो वो घोड़ा बनाया था जिसको पता था इसको कैसे बंद करते और कैसे खोलते वो गए। That evening the Greek burned their tents and sailed away in their ship, but they didn't go very far. उस शाम उन लोगों ने अपने जो टेंट थे उसको जला दिए और दूर चले गए, लेकिन बहुत दूर नहीं गए। Only one man left to pursue the Trojan to drag the horse. लेकिन एक ही आदमी बचा था। परस्यूट मतलब जो उन वो घोड़े को वहां से सिटी में ले जा पाए। Next day, the Trojans woke up expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. अगले भी ट्रोजन्स वाले उठते हैं और लड़ाई में जाने के लिए तैयार होते हैं जैसे वो 10 साल से हो रहे थे। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the wall. It seems that the long siege was over. डिलाइट मतलब प्रसन्न होते हैं और उनको आश्चर्य लगता है जब वो सी के पास देखते हैं तो उनको लगता है कि इन लोग चले गए। The tent has been burned, the shore has was deserted, the Greek ship had all gone. टेंट्स थे जो झोपड़ उनके थे वो उनने जला दिए थे और वहां से ग्रीक चले गए थे। It's it's peace at last, they cried, and opened wide their great gates and come out in large number on the plain, glad to free again to go where they pleased. वो बोले
आखिरी में अब शांति मिल गई। उन लोग ने अपना दरवाजा खोला और वहां से बहुत सारे लोग बाहर आए और बहुत खुश थे वो। Then they saw on the sand the huge wooden horse. They gathered around it in astonished, for it was indeed a wonderful piece. वो बाहर आए तो वो देखते हैं कि वहां पे एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा है, और वो देख के उन लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था। As they were wondering how the horse had been built and why it has been left behind, they found a crick with his hand tied together lying under it. जब उन लोग सोच ही रहे थे ये घोड़ा कैसे बना है और यहाँ पे क्यों छोड़ा गया है, तो उनको एक क्रिक दिखता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो वहाँ पे रहता है। When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. जब ट्रोजन उसको वहां से लेके जाते हैं तो वो जो आदमी रहता है वो बहुत डरा हुआ सा शो करता है। प्रिटेंड मतलब शो करना। Then he was commanded to tell them why the Greek had gone and why they had left the horse behind. फिर उसको बोलते हैं उन लोग कि तुम बताओ सब ग्रीक क्यों चले गए और ये घोड़ा क्यों छोड़ के गए। He pretended to tremble very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false sin. ट्रेम्बल मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? ट्रेम्बल मतलब होता है मना। वो काँप रहा था और वो रिफ्यूज मतलब मना कर रहा था बताने के लिए कुछ भी। आखिरी में उसको धमकी मिली गई, अगर तुम बताओगे नहीं तो तुमको मार डालेंगे, तो वो एक गलत सलत कहानी बताने लगता है। The Greek are tired of the long war and sailed away in their ship, he said. बोलते हैं जो ग्रीक थे वो इतनी लड़ाई से थक गए थे, वो अब वहां से जाना चाहते थे इसलिए चले गए। But they are afraid of the long voyage too, and so they have made this horse and left it as an offering to the god of the sea. वो बोलते हैं जो भगवान वो इतनी लड़ाई से थक गए थे और वो बोयाज मतलब जर्नी, वो घर जाने के इतने बड़े रास्ते थे उसे जरे हुए थे, इसलिए उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया और सी के भगवान को दिया, समुद्र के भगवान को दिया। They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to see God, but I escaped and hid from them. बोलता है वो मुझे भी मारना चाहते थे और भगवान को देना चाहते थे, लेकिन मैं वहां से भाग गया और यहाँ पे छुप गए। But why didn't the Greek made but why did the Greek make such a huge horse? Some of the Trojan asked. कुछ ट्रोजन्स उससे पूछते हैं कि उनने इतना बड़ा क्यों बनाया घोड़ा। And the cunning Greek made this reply. और फिर वो चतुर जो ग्रीक था उसने ये रिप्लाई दिया, if they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojan and not to the Greek. That is why they made too big to go inside your gate. वो बोलता है अगर वो छोटा बनाते तुम तुम्हारे सिटी में ले जा लेते, और जितनी भी अच्छी चीज होने वाली है वो ट्रोजन्स के साथ होती, हमारे साथ नहीं होती। तुम इसलिए उन लोग ने इतना बड़ा बनाया कि तुम तुम्हारे दरवाजे से अंदर ले ही ना जा लेके ही ना जा पाओ। The Trojans were delighted to hear this. They, the Greek have gone, they said, and the walls are no longer necessary. Let us make a hole in the wall and drag the horse. Delighted मतलब बहुत खुश थे ये सुन के कि ग्रीक वाले चले गए। दरवाजा तोड़ दीवार तोड़ते हैं और वहां से वो हॉर्स को लेके जाते हैं। The wise priest warned them not to do so. उनके जो
पुरोहित था उनने उसको चेतावनी दी कि ऐसा मत करो. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break the wall. वो बोलता है उनका पुरोहित, ऐसा मत करो, अगर तुम ये उनकी चाल हो सकती है, अगर तुम ये दीवार तोड़ोगे तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकते हो ट्रॉय के ऊपर. बट दे वर सो एक्साइटेड दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड. लेकिन वो एक्साइटेड मतलब इतने उत्सुक थे कि उनने उसकी बात को कुछ भी ध्यान नहीं लिए. दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वॉल in order to drag the horse in. उनने अपने गेट पे जो दीवार थी उसको तोड़ डाला वो घोड़े को अंदर ले जाने के लिए. All that day the Trojans feasted and drank, celebrated. उस दिन जो ट्रोजन वाले थे वो खाए पिए और ऐश किए. After all their celebration, they went to sleep and slept loud, soundly. सेलिब्रेशन के बाद वो सोने गए और बहुत ही गहरी नींद में सो गए. बट दैट डे ऑफ रिजॉइंग was soon followed by नाइट ऑफ टेरर. लेकिन वो जो खुशी का दिन था वो उसके बाद तुरंत ही टेरर हुआ. टेरर मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? आतंक. और उसके बाद बहुत लोगों की डेथ हुई. द ग्रीक शिप had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped the anchor and waited for the night. तो ग्रीक की जहाज थी वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी, वो वहीं पे कहीं पे छुपी हुई थी. और एंकर जो है वो शिप का एक पार्ट है, वो उन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था और पूरे रात वहीं पे रुके हुए थे. In the darkness, the fleet sailed, and the leading ship, which was Agamemnon, bore a red light high on their mast. उतने उतने अंधेरे में वैसे शिप जो थी वो चली गई और लीडिंग जो थी शिप वो थी एगेमेनॉन की. The Greek who was watching for the return of the fleet crept to the wooden horse and gave the signal. जो ग्रीक थे वो रुके हुए थे वैसे वो शिप को वापस लाने के लिए और वो सिग्नल का वेट कर रहे थे कि कब वुडन बॉक्स अंदर जाए. The side of the horse opened. The Greeks climbed out and opened the gates. उसका जो घोड़ा था उसका साइड को खोला गया और ग्रीक्स बाहर आए और वो गेट खोल दे. The whole Greek army entered the city. पूरी ग्रीक के जो सैनिक थे वो सिटी में आ गए अंदर. Immediately the Greek set the fire to the houses and towers, palace and began to burn and kill. तुरंत ही वहां पे फायर जला दी उन लोग ने और लोगों को मारने लग गए. The Troy was filled with the sight of leaping flames and the sounding of shooting, the noise of weapons and the cries of women. जो ट्रॉय था उसमें पूरा आतंक फैल गया था. वहां पे बड़े बड़े झपट दिख रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और जो तलवारें है उसकी आवाज आ रही थी और जो औरत है वो रो रही थी. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by the surprise. जब जो ट्रोजन्स थे वो अपने बिस्तर से उठे तो वो बहुत चौंका गए ये सब देख के. The enemies are right inside their walls, and many of the Trojans were killed because they could before they could put on their armor and seize their weapon. वो देखे कि उनकी बहुत सारी एनिमीज जो है वो अंदर आ गए हैं और बहुत सारे जो ट्रोजन्स है वो मर चुके हैं वो अपना ड्रेस पहनते उसके पहले ही. A bright light up the sky as palace and horse temples and towers went up in the flame.
टावर्स, हाउस और टेम्पल जो थे वो जल गए थे. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. ट्रोजन्स जो थे वो लड़ रहे थे जितना वो कर सकते थे, लेकिन वो पूरी बर्बाद थी. वेन मतलब बर्बाद. ओल्ड किंग प्राइम was killed with all his brave sons. जो ओल्ड किंग प्राइम थे ट्रॉय के, वो मारे गए उनके पूरे बच्चों के साथ. Hector's wife and his old mother and sisters were carried off as slaves by the conqueror. हेक्टर की मम्मी और बहनें बाहर से लेके गई उनको बंदी बना के. This fate was in contrast to hell when King Melanus rushed through the city looking for her and found her in her palace. किंग मेलिनस जो था वहां पे दौड़ते हुए आया हेलेन को ढूंढते हुए. She hung her head in shame and sorrow as she faced for her former husband. वो अपने आप को फांसी से लटका दी. वो अपने पति का, उसके पुराने एक्स मत फॉर्मर मतलब पुराने पुराने पति के वो देख के. Her voice was choked with emotion and she could not speak. उसकी जो आवाज थी वो बहुत भारी हो गई इमोशन से और वो बोल नहीं पा रही थी. But Melanius forgave her and she went back with him. For it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. जो मेलिनस था उसने उसको माफ कर दिया और वो उसके साथ वापस चली गई. एप्रोटाइट जो थे उसने हेल्प की. एक बात, एप्रोटाइट जो है ये ग्रीक लव का भगवान है. When morning came, nothing was left of the proud, this city that has resisted for 10 years. जब सुबह होती है तो कुछ भी बचा नहीं रहता है. जो अमीर सिटी थी 10 साल तक जो लड़ाई से अपने आप को बचा रही थी, वो अभी सब मर गए थे. ठीक है, ये जो है ये ट्रोजन ये क्या, ये हॉर्स है, वो वुडन हॉर्स. ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सबको समझा होगा. जो नहीं समझा होगा आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछिए. ये आखिरी लेसन था अपना. इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू.